भरपूर तालियों में हमारे बीच हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी तशरीफ रखते हैं। आपका स्वागत है। आप सभी को इस खास कार्यक्रम में दिल से स्वागत, जो मध्य प्रदेश में निवेश के एक नए मौके पर आधारित है। भरपूर तालियों यादव जी और साथ में विशिष्ट अतिथियों से निवेदन करती हूँ कि दीप प्रज्वलन समारोह का हिस्सा बने और दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम की इसकी विधिवत शुरुआत करें। दीपक न केवल उजाला फैलाता है बल्कि ज्ञान और ऊर्जा का भी प्रतीक है। मैं सादर आमंत्रण देती हूँ बहुत बहुत धन्यवाद। ये खूबसूरत क्षण जब हम वासु जी का स्वागत कर रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स अ ग्रेट ऑनर टू हैव अमंग्स अस मिस्टर वासु श्रॉफ, चेयरमैन रीगल ग्रुप। He is the most respected name in the global business fraternity and a key supporter of India-UAE trade relations. We are honored to have with us Mr. Vasu Shroff, Chairman of Regal Group. We'll take a moment here and we'll be felicitating all our special guest for today, and for that I call upon Mr. Sahitya Chaturvedi, Secretary General of IBPC, Indian Business and Professional Council in Dubai, to welcome all the dignitaries by felicitating them with a shawl, flowers, It's a great honor indeed. It's a great honor to welcome Mr. Satish Kumar Sivan, Consul General of India, Dubai. Vasu Shroff ji, we have the amazing dignitaries here, and we wish to thank once again. We have Mr. Sanjay Dubey, Additional Chief Secretary, Department of Science and Technology, Government of Madhya Pradesh. He's with us. We have Mr. Shiv Shekhar Shukla, IAS, Principal Secretary, Department of Tourism, Government of Madhya Pradesh.
We have Mr. Raghavendra Kumar Singh, IAS, Principal Secretary, Department of Industrial Policy and Investment Promotion and MSME, Government of MP. Big hand of applause, ladies and gentlemen. Mr. Eli Raja is with us. To formally open this evening, I now invite on stage Dr. Sahitya Chaturvedi, Secretary General of Indian Business and Professional Council, Dubai, for the welcome address. नमस्कार, जय हिंद, जय यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जय नर्मदे और जय महाकाल. Before I start a welcome note, I just wrote a few lines in your honor, sir. आपके स्वागत में कुछ पंक्तियां लिखी हैं और उनसे ही मैं स्वागत प्रारंभ करना चाहूंगा कि मोहन जी सिंहस्थ राज्य के. Very soon, the Kumbh Mela in Ujjain is going to be announced. The Singhast, that is called Singhast. मोहन जी सिंहस्थ राज्य के प्रबल प्रशासक प्रहरी हैं. मोहन जी सिंहस्थ राज्य के प्रबल प्रशासक प्रहरी हैं विनम्र कर्मठ नेता हैं और जनमानस के प्रेमी हैं विनम्र कर्मठ नेता हैं, जनमानस के प्रेमी हैं. भारत को जो हृदय संभारे, भारत, द एमपी, द मध्य प्रदेश इज इवन बीइंग कॉल्ड एज द हार्ट ऑफ इंडिया. सो I express my emotions over here that भारत का जो हृदय संभारे आज दुबई के मध्य पधारे. व्यापारी उद्योग जगत के हे क्रांतिवीर हम साथ तुम्हारे, हे क्रांतिवीर हम साथ तुम्हारे. शब्द नहीं यह वचन हमारे, महादेव साहित्य पुकारे, महादेव साहित्य पुकारे. द esteemed guest today, the Chief Minister of Madhya Pradesh, Honorable Shri Mohan Yadav ji, Your Excellency Satish Chauhan ji, Mr. Raghavendra Kumar Singh IAS, Principal Secretary, Department of Industrial Policy, Investment and Promotion, MSME, Government of MP, Mr. Shekhar Shukla IAS, sir, Mr. Sanjay Dubey, the guest of honor, Shri Basu Sharaf Sahab, my dear diaspora friend here, and very categorically Mr. Jitendra Vaidya. A fabulous program was organized yesterday. The Indian Business and Professional Councils, the governing board, the conveners, the distinguished guests, respected members of entire Indian business and professional community over here, ladies and gentlemen, good evening. And a warm welcome to this distinguished gathering in the vibrant city of Dubai. It is with immense pride and profound honor that I stand before you today on behalf of the Indian Business and Professional Council Dubai to extend our heartiest greetings to the Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh. Sir, your presence here is a testament to the strengthening bonds between Madhya Pradesh and the United Arab Emirates, as well the dynamic Indian business community in Dubai. आपकी यह दुबई की यात्रा एक ऐसी संधि का निर्धारण कर रही है जो केवल मध्य में नहीं है अपितु हृदय में है. निश्चित ही I will like to take another 1 minute to introduce the Indian Business and Professional Council, the IBPC Dubai, which has completed 22 years, established in 2003 as a premier platform to promote trade, investments, and professional collaboration between India and the UAE. Today, your good initiatives to unlock the opportunities for foreign investments and the NRIs is underscoring the growing synergy between Madhya Pradesh, a powerhouse of opportunities in India, and the UAE, a global hub for trade and innovations. Throughout the program today,
we are going to mark the tourism, the industrial development, और घोषणाओं की तो मानो बौछारें हो रही हैं। सावन का महीना शुरू हो गया है। आज सावन का पहला सोमवार है और महादेव के पुजारी प्रहरी मोहन जी, जिनके बारे में कृष्ण भी हैं और देव भी हैं, ऐसे मोहन जी का हम भूरिशा अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। पहले से भी घोषणा की थी और ऑपरेशन सिंदूर का ऑपरेशन तो चलाने की बात कही है, लेकिन उनने पूरे दुनिया में जियो और जीने दो का संदेश भी दिया कि हाँ, आतंकवादियों ने हमारे घर में घुस के कुछ किया है तो हमारी भारत पाकिस्तान की कोई लड़ाई नहीं। लेकिन आज बदलते दौर में भारत ने ये दिखा दिया कि हमारे घर के अंदर अगर आतंकवादी आकर के कोई वारदात करते हैं तो हम उनके घर में जाके भी मार सकते हैं। यह संकल्प दिखाने का समय भी दुनिया के सामने आया। और ये बात भी सत्य है कि कोई भी युद्ध हो या कोई भी इस टाइप की घटना हो, जहां भी घटेगी वहां व्यापार बढ़ेगा नहीं, व्यापार घटेगा, क्योंकि दोनों चीज एक साथ नहीं चल सकती। जिसको सरल भाषा में कहें तो बासु भैया उज्जैन तरफ तो ऐसे ही कहते थे, वो थोड़ी थोड़ी हिंदी में सभी को बोलते हैं कि गुस्सा करना तो आपको दोनों, आप मुंह से हंसते हुए नहीं दिखाई दे सकते। हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं हो सकता है। हंसने के लिए तो खिलखिलाना पड़ेगा और गाल फुलाने के लिए आंखों में आपको जो दिखाना वो दिखाते रहना पड़ेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दौर में हमने सब देखा है। 15 में आए थे माननीय प्रधानमंत्री जी, और कितने प्रकार से बदलते दौर में, और उसके बाद 22 का जो दूसरी बार जो उनने समझौता किया है, उस समझौते के बाद दुबई के साथ बराबरी के साथ आपकी सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में 90% कस्टम ड्यूटी फ्री कर देना, यह केवल मोदी जी कर सकते हैं और किसी का कलेजा नहीं हो सकता। ये मोदी जी का आगमन दुबई के माध्यम से दुनिया को संदेश देना है कि कहाँ एक छोटा सा देश, लेकिन छोटे से देश से इतना बड़ा रास्ता खोला। जैसे मकान बड़ा कितना ही भव्य क्यों न हो, जाने का दरवाजा तो छोटा ही होता है, वो दरवाजा दुनिया को खोलने का दुबई से तो खोला मोदी जी ने, और कहाँ से खोला? दुनिया के महल में प्रवेश करने के लिए दुबई, और दुबई से भारत आओ या दुनिया में जाओ, ये जो रास्ता दिखाया है, अब यहाँ से अफ्रीका तक और दुनिया में कहाँ कहाँ तक पहुँचा जा सकता है, दुनिया के सामने उदाहरण बना है। और वो जिनने नहीं खोले वो सब पछता भी रहे कि यार ज़्यादा अच्छा है कि दुबई का मॉडल रख लो। दुबई का मॉडल चल रहा है, और इसी आधार पर अब आप ही सब बता रहे कि क्या क्या और कैसे कैसे चल रहे हैं। जब मैं मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से आप बात कर रहा हूँ तो मैं अपनी इन योजनाओं को कोई दोहराना नहीं चाहूँगा। मेरे अधिकारियों ने सब सुना दिया आपको और आपने सब समझ लिया, मैं ये मान के चलता हूँ। अलग से मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं, वो सारी बातें हो गई जितनी होना चाहिए। मज़ा तो कब आता है, हमने हर एक कोई भी कथा भागवत कोई आयोजन करने गए हों, सबसे आनंद कब आता है? कब आता जितेंद्र भैया? अरे हाथ में प्रसाद दो तो मजा आता, बाकी तो हो रही है। वो तो सुनाएंगे पंडित जी जो सुनाना है, जो होना सब हो जाएगा। हमारे यहाँ बड़ा मजा है इसका भी, कभी याद आपको दिलाता हूं। हमारे तीज त्योहार भी मजे दिलाते हैं। कौन बताएगा तीज त्योहार में क्या अंतर है? व्रत और त्योहार में क्या फर्क है? जितने भी व्रत होंगे, अर्थात जैसे आप व्रत को ऐसे समझ लो कि जिस दिन उपवास रहता है और त्योहार खाने को देता है, तो जितने भी पर्व होते हैं, जैसे जन्माष्टमी पर्व से समझ लो आप, जन्माष्टमी, रामनवमी, सब दिन उपवास करना पड़ता है। और जैसे होली दिवाली तो बहुत खाने को मिलता है कि ईद पे भी मजे ही आते हैं, तो खाने को खूब मिले वो त्योहार, बाकी का पर्व, इसका मजा है। तो मैं तो त्योहार मनाने आया हूं भाई, ये पर्व मनवा दिया जिनने मनवाना। इन व्यवस्थाओं से जुड़ करके मध्य प्रदेश सरकार के साथ दुबई और हमारे बीच परस्पर
जिन बातों की आवश्यकता है वो कोई छिपी हुई नहीं है। सबको मालूम है कि फूड चेन की सप्लाई और फूड इंडस्ट्री के बारे की अगर संबंध दुबई से रखेंगे तो दुबई बदले में क्या देगा? दुबई को जो देना दुबई देगा। अब दुबई ने इतना दे दिया कि अवेयरनेस नहीं रहा तो दूसरी जगह लगाने की जगह मध्य प्रदेश ही दिख रही, और कहाँ ले जाएंगे? दुबई कम पड़ता है क्या? परमात्मा की दया से हम सब अपने अपने कार्यक्षेत्र में जहाँ से चले होंगे, कुछ कुछ जगह की कभी कभी जगह का भी भाग्य रहता है, और जगह पे भी भाग्य से आशीर्वाद मिलता है भगवान का। इसलिए वो भगवान का आशीर्वाद जिसको दिया मैं वो दुबई में देखता हूँ, मुझे दिखाई देता है। और जहाँ भगवान आशीर्वाद देता है वहाँ दूसरे राज्य के लोग भी आना चाहिए ना, कि हो गया यहाँ आशीर्वाद जितना देना था, इस आशीर्वाद को और फलीभूत करना है। परमात्मा की दया से ये सारे उद्यमशीलता में विशेषता एक रहती कि नोट तो बहुत पड़े बैंक में भी, लेकिन बैंक में पड़े हुए नोट बढ़ने के बजाय घटते हैं। ब्याज जो मिलता है बहुत थोड़ा ही मिलता है, क्यों बसु भैया? लेकिन बाहर जो उद्यमी रहता है वो बैंक की धनराशि को ब्याज से भी लेकर के उसको कई गुना ज़्यादा जोड़ के बढ़ा करके बैंक में अच्छा व्यापारी, कुशल व्यापारी बैंक की राशि भी वापस करता है और उससे कई गुना आगे बढ़ा के ले जाता है। आज के इस दौर में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सभी राज्यों ने अपने अपने कामों की गति बढ़ाई है, और जैसा समय आया है, कभी हम सोच रहे थे कि कितना अंतर पड़ता था पहले भारत की तरफ देखने का, जब इकोनॉमी की तरफ केवल 14 से लेकर अभी तक देख लो, कहाँ तुलना तो आप बहुत अच्छे से कर ही सकते हो। 47 में देश आज़ाद हुआ, 47 का देश आज़ाद, उस समय भारत का नंबर 15वां नंबर था उस समय से। दुर्भाग्य से 47 से लेकर 14 के समय तक जब मोदी जी प्रधानमंत्री आए तो 11 नंबर की इकोनॉमी थी भारत की, और ये 10 साल में चौथे नंबर या तीसरे नंबर पे पहुंचने वाली है। ये समय बदला। जब आप यहाँ आए थे तब सारे निराशा के बादल छाए हुए थे भारत के ऊपर, बाकी राज्यों पे भी। अब देखो पलट के तो मेट्रो ट्रेन भी, वंदे भारत ट्रेन भी, और बहुत जल्दी अहमदाबाद मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन भी आने वाली है। ये भारत बदल गया, ये आज का समय। ये टाटा के हमारे माननीय एयरलाइंस के सीईओ बैठे हैं साहब, और मैं आपके माध्यम से दुनिया के सामने ये डंके की चोट कह सकता हूँ, अकेले इसी कंपनी ने भारत से इतने सारे विमान का ऑर्डर दे दिया कि वो 10 साल में पूरा नहीं कर पाएगा। ये भारत बदलता दिया कि कितने सारे विमान खरीदने की बात कर दी। बताओ आप, तो मैं आंकड़े ही नहीं भूल रही हूँ। एक एक विमान कितने कितने का है। देखो इतने पैसे वाले के पैसे के विमान लाना यार, अपने को क्या मतलब, फालतू पंचायत। ये देखो अब याद आया। तो ये है परमात्मा की दया। थोड़े पैसे हो तो एक एक चीज याद रखते हो। इतने हो जाए कि भूल ही जाओ। और ये आप नहीं, जब भारत का अच्छा समय था, जब अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं, कुछ समय पहले तक ही राजा महाराजा भी सेठ साहूकार से ही पैसे लेने आते थे। तो भारत के अंदर पैसे को देने के लिए गिनने का सिस्टम नहीं था, और उसका कारण क्या था आज आप समझ सकते हो। यहाँ पे तोल के दे देते थे, क्योंकि वो पैसे हमेशा सोने और चांदी में ही होते थे, तो गिनने से अच्छा तोलना सरल रहता था। तो तराजू पे तोल लो और दे दो, कहाँ चक्कर में पड़े। अब आज का समय ऐसा बदल गया, तो बदले हुए समय को ज्वेलरीज में बदलते हुए दुबई ने रास्ता दिखा दिया नहीं वापस, कस्टम फ्री करते हुए। ये जो आज का समय कैसा आया कि आज पूरे परिदृश्य में जैसे युद्ध के 3 अलग अलग दौर से निकली है दुनिया, 20वीं शताब्दी में और 21वीं शताब्दी में भी। पहले हार जीत का, व्यापार का सारा सिस्टम 47 या बल्कि 71 के पहले
आज भारत की इकोनॉमी की तरफ से देखने में भारत ने भी कितनी गौर से आपके सबके साथ अधिकांश लोगों के संबंध अगर जुड़े हुए हैं भारत से, तो आप ध्यान देना 1947 में देश आज़ाद हुआ। वो देश आज़ाद होने में उस समय का भी $1 और $1 बराबर थे। आजकल आप ChatGPT में देख लेना, कोई अंतर नहीं था। लेकिन उस समय का हमारा 730 टन सोना ग्रेट ब्रिटेन के स्टेट बैंक में जमा था, अपना सोना वहाँ जमा था। और वो सोना जमा मोदी जी आए तब तक भी, बाकी डेवलपमेंट हुआ, लेकिन केवल 100 टन ही भारत में आ पाया। बीच में तो मौका आया था जो हमने तो अपने लिए विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया तो कर्जे लेके सोने को गिरवे होते देखा है। लेकिन आज बदलते दौर में न केवल इकोनॉमी बदली, बाकी बड़े पैमाने पर हमारा रिजर्व सोना जो यहाँ रखा हुआ था 60 से 70% उठा के अपने देश में ले गए। ये वो अपनी भारत की अपनी ताकत बता रहा है कि कोई कारण से, किसी भी कारण से किसी देश से संबंध 19 से 20 से हो तो हमारा माल तो हमारे घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये व्यापारी से अच्छा कौन समझेगा। यही तो हमारे लिए बदलते दौर का आज भारत की ताकत है। हर वो चीज़ जिसके कारण से भारत की अपनी साख बढ़ सकती है, वो सारे प्रयास चल रहे हैं। और इसीलिए आज बदलते दौर में मध्य प्रदेश की ओर से हमारे सभी सेक्टर में आपका स्वागत है, चाहे वो टूरिज्म का सेक्टर हो, MSME इंडस्ट्री के अलग अलग सब प्रकार के, या आप वर्तमान के दौर में जिस भी क्षेत्र में आना चाहें। ये जो पॉलिसी बता रहे हैं वो आपने सबने सुन लिया अधिकारियों की। इन पॉलिसियों के अलावा भी आपको कुछ लाभ चाहिए, इसीलिए मुख्यमंत्री होने के नाते आपके बीच में आया हूं। उससे बाहर जाकर भी हमको मालूम है जिन जिन देशों ने उन्नति की है, वो सिंगापुर हो या दुबई हो, इसी प्रकार से बैठ के तो व्यापार करते थे। आप बताओ आपको क्या चाहिए। पहले ये सुनते थे तो हमको अचंभा लगता था कि ऐसा कोई होता है क्या। सरकार की पॉलिसियाँ तो वो लिखी रहती, वही करना पड़ती। लेकिन ये ध्यान में आ गया कि हाँ ऐसा होता है। ये जो सरकार की कैबिनेट कमेटी होती है, वो कैबिनेट कमेटी ये पूरी सक्षम होती है, लेकिन ये सक्षम होने के लिए रास्ता दिखाने वाले 56 इंच के सीने वाले बैठे ना दिल्ली में, उनको ही मालूम है कि हाँ ये होता है। क्योंकि व्यापार की समझ बढ़ाने के लिए, देश को संपन्न बनाने के लिए, गरीब से गरीब आदमी की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए, और ख़ास करके अगर मैं आपसे कोई बात कह रहा हूँ तो ये हमारे अपने राज्य के अंदर की जो वर्तमान की सरप्लस जो स्थिति है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर गेहूँ अच्छा है, सरबती है, उनको सही दाम दिलाना है, तो सही दाम दिलाना तो केवल मुझे सरकार चलाते हुए केवल मंडी की तरफ देख करके मध्य प्रदेश से बाहर नहीं आऊँगा तो मैं अन्याय करने वाला हूँ। क्योंकि वो उनकी सही दाम दिलाने के लिए जहाँ जहाँ मार्केट की गुंजाइश होगी उस मंडी तक मुझे पहुँचना चाहिए, तो मैं वहाँ के नागरिकों के साथ भी भला करूँगा और आपको भी योग्य दाम पर अच्छे से अच्छा माल दिलाऊंगा, ताकि ये दोनों का परस्पर व्यापार का कायदा एक तरफ नहीं, एक तरफ कुशल श्रमिकों की अच्छी संभावना मध्य प्रदेश में है, तो उन अच्छे लोगों को अच्छे काम की, उनकी अगर स्किल डेवलपमेंट का अच्छा काम उन्होंने किया है तो जहाँ मार्केट है वहाँ तक लोग पहुँचाना ही नहीं। मुझे मालूम है नरेश जी के बारे में और वासु भैया के समय आपने बड़ी कठिनाई में आए थे। मुझे नहीं मालूम कि कोई IIT या कोई इस प्रकार से करके गए। मैं बुरा नहीं मानता हूँ, मैं भी मान के चलता हूँ, लेकिन ये ज़िंदगी के अनुभव से IIT IIM से भी कई गुना ज़्यादा आपकी डिग्री अनुभव की डिग्री है, जिससे हम में से आगे लोग बढ़े। ये जो अपनी अंदर की क्षमता है, जो योग्यता है, ये और कहीं नहीं मिलती है। भारतीय माता बहनों के किचन में हल्दी, मिर्ची, नमक, तेल, घी, उसका जो मसाले का जो आनंद है वो कहाँ से कहाँ पहुँचाता हमको मालूम है। वो मसाले की महक गोविंदा में आज मैंने आनंद लिया है आपके माध्यम से। आज वही कार्यक्रम हुआ था टेक्सटाइल हब में, कितना अच्छा लगा वाकई में कि ये जो आपने शुरुआत की थी शायद वो टेक्सटाइल सिटी, क्या बोलते हैं, टेक्समॉस है ना। आपने, मैं जब देख रहा था गौर से तो मेरे को उसमें जो भी प्लानर होगा उस प्लानर की बुद्धिमत्ता व्यापार को बढ़ाने की भी दिखी, क्योंकि वो सरकारी अगर आधार पे होता तो मैं मान के चलता कि सबके ऊपर RCC की छत डलवा देते।
उसकी हाइट ऐसी नहीं रखते कि आपने फोल्डिंग चादर के ऊपर शेड बना हुआ, नीचे 1 2 3 फ्लोर, आपको चाहिए जितना कर लो, ऐसे ही है ना भैया। आगे का हमारा शोरूम, पीछे का गोडाउन, और गाड़ी घोड़े निकालना, और आग वाग लग जाए तो सब दूर छोटे छोटे रोड निकाल करके बढ़िया शानदार बना दिया। और इतनी अच्छी प्लानिंग बहुत तरीके से आपने की, यहाँ के लिए भी समसामयिक है, और ये मॉडल हम वहाँ भी ले जा सकते हैं। वासु भी आपने क्या नहीं, यहाँ से जरूर ले जाना, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ ये मॉडल उतार दें। ऐसी कई सारी चीज़ें सीखने लायक है। लेकिन आज तो आपने सबने दिल से इतनी देर तक सुना। ये लगता है कि व्यापारियों को इतनी देर तक भाषण सुनना ये भी बड़ी परीक्षा का काम है, मामूली बात नहीं है। लेकिन व्यापारी वो जो आखिरी तक देखे और फिर निर्णय करके करना क्या है, दिल्ली में तेल कितना है वो देखने का तो मज़ा, ये तो व्यापार के सच्चा कायदा है। तो मैं मान के चलता हूँ मध्य प्रदेश के साथ जब हम अपने विभागों की अलग अलग पॉलिसियाँ लेकर आ रहे हैं, आप सबके लिए मेरी अपनी ओर से दरवाज़ा खुले रखने का आग्रह करते हुए आइए मध्य प्रदेश सरकार के साथ जुड़िए, अपने व्यापार व्यवसाय, अपनी कुशलता, अपने तमाम प्रकार की संभावनाओं पे हम और आप लंबे समय तक साथ चलेंगे। इसी भावना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।